So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 8, right? So today we are starting with a new chapter, that is lesson 8, Coromandel Fishers, right, which is a poem. So if you remember, in our last video we have completed lesson 7, A Boy's Best Friend, right? So we have completed that chapter, and I also gave you homework to write down the question answer and word meaning in your classwork copy, right? So today we are starting with a new chapter, that is lesson 8. So let's proceed and study what is there in the poem class. So lesson 8, Coromandel Fishers, which is a poem for class 8. So let's start class. Coromandel Fishers. So the poem Coromandel Fishers is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu. She was born on February 13, 1879 and died on March 2nd, 1949. So let's read about her. Popularly, Sarojini Naidu, popularly known as the Nightingale of India, right? Sarojini Naidu was a gifted poet and a freedom fighter, right? So she was a gifted poet as well as she was a freedom fighter. She was the first Indian woman to be appointed the president of the Indian National Congress, right? So she was the first woman who was appointed as the president of Indian National Congress for the first time, right? She depicted Indian life, culture, and tradition in her poems. Depicted means to frame or to write, right? So what she write mostly on about uh, Indian life, okay, then culture, then tradition in her poems. So most of her poem are written on Indians' life, Indians' culture, and Indian traditions. She is one of the most accomplished Indian poet. Accomplished means expert, right? So she is one of the expert Indian poets. Some of her popular works are The Bird of Time and The Broken Wing, right? So this story is among those of her popular works, right, which is a Coromandel Fisher. So let's start the poem class. Coromandel Fishers, lesson 8. This poem awakens the soul from the dullness of our mind to make life worthy of existence, right? So this poem awakens means to wake up or to awaken, right? The soul means the spirit of the human or everyone from the dullness means laziness of our mind. मतलब mind में जो laziness है, जो dullness है, जो और तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उनको अवेक कर दी है ये पोयम, राइट? उनको जगाती है. टू मेक लाइफ वर्दी ऑफ एग्जिस्टेंस. वर्दी ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स फुल ऑफ लाइफ, right? So after reading this poem, or whenever somebody reads this poem, it removes the laziness, the dullness, the hardness of the life, and it keeps the life on the track of full of life, right? This clarion call is quite clear to wake up any heart from slumber, right? So clarion means loud and clear, right? And slumber means sleep. So this clarion means this poem is so loud and clear that it clearly wake up the hearts of any people which is sleeping, right? So it has the power. This poem has the power. The words that are used in this poem by Sarojini Naidu are, or they have the power of to wake any heart which is sleeping, right? So that it can so that the heart of the person himself or herself can go out and seek what they want in their life, with removing all the laziness and dullness of themselves, right? So let's start the poem class. So first I'm going to read the poem, then I will be explaining line by line. Rise, brothers, rise. The awakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free, to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea.
No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. Right. So I have read one paragraph. Right. So let me explain what the poem of every line is saying, right? Or what the what the line of this particular poem, or what the lines of this particular poem is saying. Rise, brothers, rise. The awakening skies pray to the morning light. Rise, brothers, rise means now the Sarojini Naidu is saying, now the poet is saying to all the person who are at the seaside or the seashore, she is saying that rise brother rise, मतलब उठो और जागो. The awakening skies pray to the morning light. The awakening skies means the awakened skies, क्योंकि अब यहाँ पे जो awakening skies का मतलब है कि रात अब सुबह हो रही थी, तो रात भर से जो जो स्काइज थे, मतलब जो आसमान था वो क्या था, सो रहा था, बिकॉज इट वॉज डार्क, इट वॉज नाइट टाइम. But because it is a daytime, right now it is a daytime, so the sky is also awakening up, ठीक है, and praying to the morning light. That means saluting to the morning light, because it is a daytime. So the sky which was asleep during the night time, now it has been awakened just to salute the morning light, because it is a daytime now. The wind lies asleep in the arms of the dawn. राइट. सो विंड, जो आप देखते हो कि शोर अगर की बात करें, शोर मतलब जो बीच होते हैं, जो बैंक ऑफ द रिवर्स होते हैं या सी होते हैं, जिनको हम बीचेस कहते हैं, तो वहाँ पे जिनको हम शोर भी कहते हैं, ठीक है, SHORE, शोर. द विंड लाइज स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन. तो अगर आप देखोगे तो जो विंड है, जो यहाँ पे सरोजिनी नायडू का कहने का मतलब है जो हवा अभी चल रही है, ठीक है, सी के किनारे में या बीच के किनारे पे, वो बहुत शांत है, ठीक है. किसके किसके टाइम पे, किस टाइम पे, डॉन के टाइम पे. डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग. डॉन मतलब जब सूरज की पहली किरण से जब पड़ती है, तो उस टाइम को, मतलब जब अंधेरा ख़त्म होने लगता है और सुबह शुरू होने लगती है, इन दोनों के बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं. So the wind lies asleep in the arms of the dawn. That means the wind which is blowing is not blowing very fast, right? क्योंकि वैसे जो विंड चलती है बीच के किनारे, वो बहुत तेज़ चलती है. तो क्योंकि वो रात में बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, पर अभी क्योंकि ये सुबह का टाइम है, तो विंड जो वहाँ पे बह रही है आसपास बीच के किनारे, वो एकदम शांत है अभी. लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट. क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि रात के टाइम में यही विंड किस तरीके से चल रही थी, जैसे एक स्टॉर्म की तरह चल रही थी, मतलब आंधी की तरह ये हवा चल रही थी रात के टाइम में. पर क्योंकि अब सुबह हो गई है, तो वो बहुत धीमे हैं और आराम से चल रही है. लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट. क्राइड ऑल नाइट का मतलब है ब्लोस लाइक अ स्टॉर्म, राइट. सो ऑल द नाइट, लाइक ड्यूरिंग द नाइट टाइम, द विंड वॉज ब्लोइंग लाइक अ स्टॉर्म. बट बिकॉज इट इज़ अ डे टाइम, नाउ द विंड इज़ ब्लोइंग very smoothly and slightly, right? Come, let us gather. Gather means to collect our nets. Nets मतलब, क्योंकि ये कहानी फिशरमैन की है, और फिशरमैन क्या करते हैं, नेट का यूज़ करते हैं, मतलब जाल का यूज़ करते हैं, क्या पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू जो पोएट है, वो ये कह रही हैं कि नाउ द फिशरमैन्स आर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ और टॉकिंग विद ईच अदर. नाउ दे आर सेइंग लेट अस गैदर our nets, means let us collect our nets from the shore. Shore means seaside or bank of the sea or river, right? And set our catamarans free. So catamarans are boat, ठीक है. बोट है, ये बोट होती हैं जो कि जिसको यूज़ करके फिशरमैन क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं सी में. सो कैटामरन्स आर बोट्स. To catch the leaping wealth of the tide. To capture the leaping wealth of the tide. Capture means to catch, right? Leaping means jumping. Wealth means treasure of the tide. Tide means the sea, right? So to capture the leaping wealth of the tide. अब यहाँ पे to capture का मतलब तो समझ में आ रहा है कि कैच करना, पर leaping wealth क्या है? leaping मतलब jumping. और आप जानते हो कि सी में या रिवर में कौन जंप करता है, मछलियाँ जंप करती हैं, और फिशरमैन का एकमात्र जो लाइवलीहुड होता है
या जो एकमात्र लाइक ऑक्यूपेशन होता है वो क्या क्या होता है, फिशिंग करने का, ठीक है। तो यहाँ पे लीपिंग का मतलब है जंपिंग, और जंप कौन करता है, फिशेस करती हैं, वेल्थ। और जो इनका ट्रेजर होता है, जो इनकी ऑक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपेशन का जो वेल्थ होता है, जो मतलब जो ट्रेजर होता है वो क्या होता है, मछलियाँ ही होती हैं, ठीक है। सो टू कैप्चर, और नेट से ये क्या करेंगे, उन्हीं वेल्थ को, जो लीपिंग मतलब जंपिंग ट्रेजर है या वेल्थ है, उसी को कैप्चर करेंगे। दैट मीन्स दे आर गोइंग विद देयर नेट्स to catch the fishes for their livelihood, because their occupation is to fish. Their occupation is to catch the fishes and sell into the market, right? To capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea, राइट। अब आपको पता है कि यहाँ पे किंग्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो लोग फिशरमैन होते हैं वो क्या होते हैं, जब वो फिशिंग करने जाते हैं तो आपको पता है समुंदर में हर आए दिन आंधियाँ आती हैं, या बहुत ज़्यादा हाई टाइड या लो टाइड रहता है, तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है। पर ये फ़िशरमैन मतलब आम लोगों को तो दिक्कत होती है, पर ये फ़िशरमैन है क्योंकि उनको पता है कि समुद्र में कैसे जाना है, कैसे रहना है, कब क्या करना है, नॉर्मल टाइम में कैसे रहना है, या स्ट्रॉमी डेज़ में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है उस हाई टाइड में या लो टाइड में। तो दैट इज़ वाई नाउ दे हैव बीन मेंशन्ड एज द किंग्स ऑफ द सी। No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. No longer delay, delay means waiting, मतलब अब हमें वेट नहीं करना चाहिए ज़्यादा, और हमें क्या करना चाहिए, let us hasten away means hurry away in the track means path of the seagull's call. seagulls क्या होता है, seagulls होते हैं वो बर्ड होते हैं जो कि मछलियों का शिकार करते हैं। तो यहाँ पे the poet is saying कि without any delay let us hurry and go on to the track of the seagulls call। और जैसे जैसे सीगल्स जो बर्ड्स हैं वो जो कि शिकार करते हैं मछलियों का, क्योंकि उनको पता है कि मछलियाँ कहाँ पे हैं, तो उन्हीं के ट्रैक पे, उन्हीं के पीछे पीछे हमें जाना है और बहुत सारी मछलियों को पकड़ना है। The sea is our mother and the cloud is our brother and the waves are our comrades all, right? So sea is our mother, जो समुद्र है वो हमारी माँ है। वाई? बिकॉज द सी हेल्प्स देम इन फिशिंग, एंड बिकॉज ऑफ द फिशिंग दे अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है। वो अपने जो जो पैसे होते हैं वो कैसे किससे कमाते हैं, सी से ही कमाते हैं, सी मतलब फिशिंग करके। तो दैट इज़ वाई सी इज़ देयर मदर। द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर। अब क्लाउड ब्रदर यहाँ पे क्यों मेंशन है, बिकॉज क्लाउड के हेल्प से वो डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि हवा कैसी चल रही है, किस तरीके से चल रही है, किस तरफ चल रही है, ठीक है। तो क्लाउड इज़ देयर ब्रदर एंड वेव्स आर आवर कॉमरेड्स मीन्स फ्रेंड्स, ठीक है। और जो नदी का बहाव है, जो सी का मतलब समुद्र का जो बहाव है, वो वेव्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये सारे सी हो गया, क्लाउड हो गया, वेव्स हो गया, दे ऑल दीज थ्री थिंग्स, मेनली ऑल दीज थ्री थिंग्स आर देयर फ्रेंड्स ऑफ फिशरमैन, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives, right? What though means what if, ठीक है। तो दो का मतलब है यहाँ पे if, we toss means be in problems, किसी परेशानी में या problems में पड़ जाना। At the fall of the sun means sunset, right? So what though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives, right? So यहाँ पे जो सरोजनी नायडू है वो बोल रही हैं, जो पोएट है हमारी, वो बोल रही हैं कि जो फिशरमैन है आपस में बात क्या कर रहे हैं कि व्हाट इफ़ वी टॉस मीन्स, अगर, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि समुद्र में जाना बहुत ख़तरनाक होता है, हाई टाइड या लो टाइड का खतरा होता है, उसके बाद तूफ़ान आने का खतरा होता है। तो ऐसे में जो फिशरमैन है वो आपस में बात कर रहे हैं कि व्हाट इफ़, अगर हम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और सनसेट से पहले पहले लौट के नहीं आते हैं, देन हु विल हेल्प अस आउट, द सी गॉड विल हेल्प अस आउट, राइट। कि अगर बाई चांस हम फिशिंग करते करते कहीं ऐसा हो गया कि आंधी आ गई या स्ट्रॉम आ गया और हम सनसेट से पहले पहले लौट नहीं पाए अपने घर के लिए, तो हमारी मदद कौन करेगा, हमारी मदद करेगा जो सी गॉड है वो, राइट। He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives, right? So he मतलब God, यहाँ पे he को किसको डिनोट किया गया, he से God को। So hide means to save,
ब्रेस्ट मीन्स आर्म्स, राइट। सो ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर, मतलब ही का मतलब है यहाँ पे गॉड को बोला जा रहा है कि गॉड के हाथ में सारा कुछ है, मतलब जो कि अभी मतलब गॉड के हाथ में सारा कुछ है, मतलब ज़िंदगी देने या ज़िंदगी लेने का काम, डेथ एंड लाइफ इज़ इन द हैंड ऑफ गॉड, राइट, ऑलवेज इन द हैंड ऑफ गॉड्स। तो वहाँ पे ये फिशरमैन आपस में बात करते हैं आगे कि जो स्टॉर्म है, जो आंधी है, या जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है या सिचुएशंस हैं, वो किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी है कि आंधी जैसी सिचुएशन होती भी है, आ जाती है, हमें प्रॉब्लम होती है फिशिंग के टाइम में, वो भी कहाँ पे? सी में, ठीक है, समुद्र में, तो द गॉड विल हाइड अस इन हिज आर्म्स, राइट। सो गॉड जो क्या करेगा, वो हमें सेव करेगा, हमारी ज़िंदगी को, हमारी हमारी लाइफ को सेव करेगा, मतलब हमें बचाएगा, ठीक है, और हमारी ज़िंदगी को और हमें सेव करेगा, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट द सिचुएशन इज़, वी ओनली हैव टू ट्रस्ट God, and we only have to focus and concentrate on what we are doing or what is our aim, and their aim was to do the fishing, right. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. So coconut glade means area full of coconut trees, वो area जो कि फुलफिल है या फुल ऑफ है किसके? कोकोनट ट्रीज से। And the scent means smell of the mango grove means full of a group of trees or group of mango trees, right. So sweet is the seat of mango coconut glade, जो अगर कोकोनट मतलब जो एरिया कोकोनट से फुलफ़िल है या वो एरिया जो मैंगो ट्री से फुलफ़िल है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताने का तरीका है कि जब ये जो बीच के किनारे जो कोकोनट ट्री से भरे हुए एरियाज़ हैं, जो मैंगो ट्री से भरे हुए एरिया हैं, उनकी जो स्मेल है, जो स्वीट है, जो उनका एनवायरनमेंट है, जो कंडीशन है, जो पूरा एटमॉस्फेयर है, दे आर वेरी गुड, एंड दे आर वेरी attractive, right. Because now over here the poet is expressing or telling the beauty of the nature as well, right. And sweet are the sands at the full of the moon with the sound of the voices we love, right. And sweet are the sands over here. sand को किससे डिस्क्राइब किया गया है, या sand क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? बीचेस, मतलब किनारे, समुद्री जो किनारा होता है उसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है सैंड, बीचेस को। सो एंड स्वीट्स आर द सैंड्स एट द फुल ओ द मून, राइट। जब फुल मून डे होता है तो आप यहाँ पे जब फुल मून डे होता है तो पोएट बोल रही है जो कि समुद्र का किनारा होता है फुल मून डे पे, वो बहुत ही अच्छा होता है, मीन्स अट्रैक्टिव होता है, मीन्स इट इज़ गुड लुकिंग, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड ऑसम एंड ब्यूटिफुल विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव। और आपको पता है फुल मून डे में जो हाई टाइड और हाई टाइड या लो टाइड होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो इस वजह से, राइट, तो इस वजह से जो साउंड है, जो हाई टाइड और लो टाइड का जो साउंड है वो भी बहुत अच्छा है, राइट। बट स्वीटर ओ ब्रद वॉइसेस वी लव, और वो वॉइसेस जो हाई टाइड या लो टाइड होने की वजह से जो साउंड आ रहा है समुद्र से, वो उस आवाज़ को हम बहुत प्यार करते हैं या बहुत अच्छी लगती है हमें सुन के। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली। तो स्वीटर मीन्स रियल हैप्पीनेस। तो ऊपर की जो दोनों लाइनों में डिस्कस हुआ है, कोकोनट ग्लेड के बारे में, मैंगो ग्रोव के बारे में, सैंड के बारे में, फुल मून डे पे जैसे सैंड और बीचेस रहते हैं फुल मून डे पे, या जो साउंड आता है हाई टाइड या लो टाइड से, तो ये एक टेम्पररी हैप्पीनेस है, कि कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो टेम्पररी, ये दोनों लाइन में पोएट ने टेम्पररी हैप्पीनेस डिस्कस किया है, बट जो रियल हैप्पीनेस है वो नीचे की दो लाइनों में डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है? बट द स्वीटर, यहाँ पे स्वीटर का मतलब है रियल हैप्पीनेस, पर जो रियल हैप्पीनेस है वो ये है कि ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे मीन्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जब कभी भी आप कभी शीशोर पे, मतलब समुद्र में या नॉर्मल एक रिवर वाटर में आप जब गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी जब तेज़ बहाव रहता है तो
उसके ड्रॉपलेट्स हमारे शरीर पे मतलब हमारी बॉडी पे पड़ते रहते हैं, ठीक है। और ख़ासकर समुद्र में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई टाइड जैसी चीज़ें होती हैं। तो जो रियल हैप्पीनेस है अकॉर्डिंग टू पोएट, वो ये है कि जो जो वहाँ पे हमें टच कर रहा है, कौन? वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच इज़ टचिंग एज अ स्प्रे, ठीक है। जो हाई टाइड से हमें वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हमारे ऊपर पड़ रहा है, दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस, बिकॉज बाई टचिंग because when these droplets touch our body, we realize that we are really doing something great. And the dance of the wild foams glee, foams यहाँ पे मतलब है tide और glee means great happiness, right? और जो डांस है, जो हाई टाइड या लो टाइड, खासकर अगर हाई टाइड की बात करें, जो वहाँ पे टाइड्स उठ रही हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, वो जिस हिसाब से वो डांस कर रही है, जिस हिसाब से हम उनको देख सकते हैं अपने आँखों से विद द नेकेड आइज, राइट, वी कैन सी हाउ द टाइड्स आर लाइक राइजिंग अप एंड बेंडिंग डाउन. So that is the real happiness, because we can feel the droplets of water which is touching our body as a spray, and at the same time we can see the tides which are helping not only the people but also the boats to drive away in the direction of the winds, right? So this is the real happiness. Why? Because these are the things, or these two, especially these two things, making the fishermen realize that they are doing some kind of a great work, right? Row, brothers, row to the edge of the verge where the low sky meets with the sea. सो रो मीन्स टू ड्राइव अ बोट, जिसको रोइंग कहते हैं, ठीक है। रो मतलब बोट को चलाना. सो रो ब्रदर्स रो. नाउ द पोइट इज सेइंग कि you the brothers means the fishermen, you have to row the boat, you have to drive the boat to the edge of the verge means border, और उस आखिरी, edge means किनारा, तो उस बॉर्डर के किनारे तक हमें जाना है, ठीक है। where the low sky meets with the sky, meets means joins, हमें उस किनारे तक जाना है, उस किनारे, उस बॉर्डर तक, उस बॉर्डर के किनारे तक जाना है बोट चला चला के जहाँ पे स्काई जो है किससे मिल रहा है? सी से, where the sky is meeting with the sea, right? So that means we have to go deep inside, through the worst time or through the worst situation to get the bright future. That means if we go out without realizing or without worrying about the situations कि आंधी आएगी या कुछ होगा हमें समुद्र में, इन सब को अगर हम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो एट लास्ट द फिशरमैन will going to find a lot of fishes, and that time it will be their success, right? So let proceed further, class. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book too, right? So like I have written the meanings in my book, so you also have to write down the meanings, right, in your book, then word with the meaning in your classwork copy, and also you have to write down the question and answer of this lesson in your classwork copy, right? So students, in our next class we will continue with lesson 9, that is Jamaican fragment. So with this particular video we have completed lesson number 8, that is Coromandel fissures, and in our next class we will be starting with lesson 9, that is Jamaican fragment. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.